वेलकम बैक टू माय क्लास। आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। मीन्स हाउ टू मैनेज आवर सेल्फ टू ओवरकम फ्रॉम प्रॉब्लम which may occur in our lifetime or in due course of lifetime. This is called what? Self management skill. It also referred as self control or self regulation. आत्म नियंत्रण कैसे करना है? It is the ability to regulate one's emotion, thoughts and behavior effectively in different situations. That is called what? Self management skill. Okay? It includes motivating oneself and setting and working towards personal and academic goals. It may be short term or maybe long term. It helps in developing good habits, overcoming bad habits, reaching your goals, and overcoming challenges and difficulties. Look at the picture. All these include in self management skill. Number one is your self awareness, then your self confidence, self motivation, then self thinking, then your time management, then your self confidence or self control, then problem solving, then your personal hygiene, then teamwork, and last your goal setting. Clear? Look at the picture. If possible, write down the notes. What is self awareness? Self awareness means what? Knowing yourself as an individual, your values, likes, dislike, strength and weakness. It is there, look. What is self-control? It is the ability to control your behavior and discipline. Behavior, discipline, etc. What is self-confidence? Believing in yourself that you can do any task that is given to you and not scared of taking the risk. It's called self-confidence. Believing in yourself. Next what? Problem solving. Understanding the problem and finding a solution. Using step by step method. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं प्रॉब्लम आने से तो धीरे धीरे करते हैं, ऐसे ही सारा प्रॉब्लम के सॉल्व हम अपने आप कर लेते हैं. नेक्स्ट सेल्फ मोटिवेशन. व्हाट इज दैट? डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल मोटिवेशन. जो काम हम बिना किसी से और किसी के मोटिवेशन से अब कर लेते हैं. ओके, सेल्फ मोटिवेशन. टाइमली पढ़ना, टाइमली उठना, टाइमली खेलना, ये सब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन. टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करो, टाइमली अपना होमवर्क दे दो, दिखा दो सर को, ये सब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन. नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव थिंकिंग. बी पॉजिटिव ऑलवेज. एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और एफर्मेशन इवन इन टफ कंडीशन. If possible, you may write down the note also. Now, what is that? Expressing certainty or affirmation even in tough situation. टफ सिचुएशन में से कुछ भी सिचुएशन हो जाए तो हम वहां पे हमें पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज योर टीम वर्क. वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू accomplish share goals. Teamwork. Working together with people to accomplish shared goal.
कभी कभी हमें स्कूल एक्टिविटी दिया जाता है, ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं उसको, सब मिलके करो. व्हाट इज बेनिफिट? इट डेवलप योर communication skill, leadership skill, sometimes sharing skill also. Clear? It is called team work. Next what? Time management. What is the use of time management? Achieving task on time and according the plan. जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जब पढ़ते थे हम कुछ रहता ना टास्क ये टाइम से करके देना है, ऐसा ना. फॉर एग्जाम्पल एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का मार्क आ रहा है 80%, दूसरा का आ रहा है 60%. क्यों? दोनों का टाइम सेम है, दोनों एक ही साथ स्कूल आते हैं, एक ही साथ जाते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है? बस यही रीजन है टाइम मैनेजमेंट. जो जिसको 80% मिल रहा है वो टाइम को सही इस्तेमाल कर रहा है, और जिसको 30% मिल रहा है वो टाइम को वेस्ट कर रहा है, किसी और में लगा रहा है वो टाइम को. आज से अपने लिए अलग टाइम टेबल बनाओ, खुद के लिए टाइम टेबल बनाओ, किसी और के लिए नहीं, जिसको तुम खुद ही फॉलो करोगे. देखना धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आएगा. नेक्स्ट व्हाट? योर गोल सेटिंग. गोल क्या है? एक टारगेट और अचीवमेंट. 6 मंथ बाद मेरा टारगेट क्या है, आप पहले मैं कैसे करूँगा, कितना मार्क लाऊंगा, ये तो क्या है? गोल सेटिंग. उसी गोल को अचीव करने के लिए प्लान करो. Sit with your parents, sit with your teacher, sit with your mentor or counselor, plan it. मैं कैसे इतना अचीव कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चा डेली 8 आवर स्टडी कर रहा है एंड ही इज गेटिंग 80-85% मार्क. क्लियर? नाउ ही वांट टू अचीव 90% मार्क इन द एग्जामिनेशन. तो वहां क्या करना चाहिए? सिंपल लॉजिक. अगर मैं 8 आवर स्टडी करके 85% मार्क अचीव कर रहा हूं, अगर आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा तो क्या आएगा? वही 90% होगा, नहीं होगा? बोलो. सिंपल. ये है गोल सेटिंग. एट लास्ट आई विल इंक्लूड वन थिंग, इट इज योर पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग. What is that? Keeping oneself clean, healthy, and grooming means be smart. स्मार्ट दिखोगे. ठीक है? नेक्स्ट व्हाट? नोइंग योरसेल्फ. अपने आप को पहचानो. कैसे पहचानोगे? बाय अंडरस्टैंडिंग योर और बाय नोइंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. That is what? Self awareness. अपना वीकनेस क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है. अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ओके. फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड इन सिंगिंग, आई एम गुड इन कुकिंग. और व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ. Weakness, I would like to learn more about computer. I would like to learn more about discoveries. I have to learn more about some technology. I'm unable to reject junk food when my friends suggest. ये क्या है सब? Example of weakness. Clear? Find out your weakness. Next, identifying strength and identifying weakness. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Take time off to think about what you do well. क्या तुमसे अच्छा हो रहा है? सबसे अच्छा क्या हो रहा है? और तुम्हारा कौन सा ऐसा क्वालिटी है जिसे सब कोई अप्रिशिएट करते हैं? This is called your strength. Find out your own strength. Next what? Weakness. Point out the areas where you struggle and what you find difficult to do.
ऐसा कौन सा एरिया है जो स्ट्रगल कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारा डिफिकल्ट फेस कर रहे हो, फाइंड आउट दैट वीकनेस। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। तुम्हारे बारे में जो बोला गया, जिसने जो बोला है, जस्ट रिसीव इट एंड टू बी ओपन, जो फीडबैक आ रहा है, एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस without feeling small about it, and look at the areas of improvement. Clear? तुम्हारे बाद तुम्हारे फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, सुनो उसको। कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई पॉजिटिव बोलेगा, बट फर्स्ट लिसन, एक्सेप्ट द फेलियर, एक्सेप्ट द मिस्टेक, क्लियर, एंड वर्क ऑन इट। Next, there are two words, interest and abilities. What is interest? Interest are the things that we enjoy doing. Or interest may include activity you like to do at school and in your free time that make you happy. जो करने में मजा आ जाए, मजा आता है ना, कुछ काम होता है स्कूल में, घर में, खेलने टाइम पे मजा लगता है ना, तो क्या है कि अंदर से खुशी आती है, महसूस होती है, वो क्या है, इंटरेस्ट। सर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्टेड हूँ करने के लिए, तो कहाँ से आया हो, कोई पता है, अपने आप आता है इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट गेम मेरा इंटरेस्ट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्रिकेट गेम देखने के लिए, खेलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। बट खेल के जीत के आना, ये क्या है, मेरा एबिलिटी है, मेरा एबिलिटी है। Okay, look the difference. What is ability? It is an acquired or natural capacity that enable an individual to perform a particular job or task with considerable proficiency. कुछ काम हमें देते हैं, टीचर देते हैं उसको, कुछ स्टूडेंट को, इसे कर लोगे, हाँ सर हम लोग कर लेंगे। 10th प्रॉब्लम दी है, कुछ 10-12 प्रॉब्लम दी है तुम लोगों को करने के लिए, सॉल्व इट, टाइम दिया 20 मिनट्स, तुम लोग क्या बोलते हो, हाँ सर हम लोग कर लेंगे, तो क्या है, एबिलिटी, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज व्हाट, इट इज a sense of trusting own ability and self. If you are an intelligent, hardworking and talented person, but lack of confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, टैलेंटेड बॉय बच्चा हो, टैलेंटेड बॉयज और गर्ल्स हो, जो भी हो, पूरा भरा है टैलेंट, हार्ड वर्किंग भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप कुछ करना नहीं चाहते हो, तो क्या होगा, nobody can recognize you and your talents. So develop your attitude, okay? And it is a quality we build when we believe in our strength to success. हम जब अपना स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ बिलीव, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट, ये सब क्या है, क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट, हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ वी कैन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देयर आर 3 steps. Step 1, step 2, step 3. Step 1, appreciate achievement and accept failure. अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट करो, खुद अप्रिशिएट करो, और जो फेलियर है उसको भी एक्सेप्ट करो। क्लियर? स्टेप 2, हैव ए गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड्स इट। एवरी टाइम, एवरी डे, जस्ट सेट ए गोल, मुझे क्या करना है, एम ऑफ योर लाइफ जो बोलते हैं उसको, तो लॉन्ग टर्म में आ गया, तो एक टारगेट सेट करो, उसको अचीव करने के लिए जो जो करना पड़ेगा
do it. Next, always look at the goal side and be happy. हमेशा अपने अचीवमेंट को देखो और be happy. क्लियर? मान लो अचीवमेंट इस महीने पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ देखो उसको, नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा ज्यादा आया और आगे देखो थोड़ा सा आ गया, बट बी हैप्पी. आज नहीं तो कल होगा, बट बी हैप्पी. टाइमली फॉलो करते चलो अपना प्लान को, अपना जो टीचर उनका बात मानते चलो, फिर अपना फ्रेंड का बात मानो, जो मेंटर उनका बात भी मानो, देखना सक्सेस इज योर्स. नेक्स्ट, रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. A person attitude can be considered either positive or negative. दो तरह का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है. Positive thinking requires a person to look at the good in things, observe, understand, and patiently work toward improving them rather than worrying and or looking for the bad in thing. जो पॉजिटिव पर्सन है क्या देखेगा? ओनली अच्छा देखता है, और जो नेगेटिव पर्सन क्या करेगा? ओनली बुराई देखता है सब. ओके. Positive thinking leads to goal. Positive thinking leads to good result for you, like overcoming challenges, then making you do well or making you an energetic individuals, helping you get better at work, and making you and people around you happy. This is the role of positive thinking. Next, how to keep your thinking positive. हम अपना आप थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव रखेंगे? हमेशा सारा दुनिया नेगेटिव बोलता है, हम कैसे पॉजिटिव हो जाए? सुबह सुबह टीवी खोलो तो नेगेटिव आता है, टीवी पेपर देखो नेगेटिव आता है, सुबह से मिलते हैं लीडर कल ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कल ऐसे हो गया, ये सब क्या आता है? सुबह सुबह नेगेटिव बहुत सुनना पड़ता है. तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें हम लोग? स्टार्ट योर डे इन ए पॉजिटिव वे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइजिंग, रीडिंग और वॉचिंग sometime motivating, or watch motivational speech, talking to people who are positive and make you smile. Next, manage time to relax. कुछ अगर टाइम मिला रिलैक्स होने के लिए तो go for a nature walk, or you can do yoga and meditation, or listen to music to relax and stay calm. Listen. Next, imagine the best in any situation. हमेशा अच्छा ही देखो, the best. For example, do not keep thinking of things that are going badly. Instead, think how you can make them better. Make the things better. मैं ऐसे इसको अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा कैसे कर सकता हूँ? Always imagine the best. Next, learn to take feedback in a positive way. For example, if someone gives you feedback, objectively thinking how it will help you to improve and start working on it. कोई अगर फीडबैक दे रहा है तो उसको सुनो, रिसीव करो उसको. जो अगर कोई फेलियर है वहाँ पे है, कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करना सीखो. ओके. Accept your failure. Next, express gratitude. ये क्या है? Be thankful to all. Okay. I am be thankful to God. You also be thankful to God, our father, mother, our teachers, our neighbors, our society, our helpers are there. Listen, those who help us. I am thankful to our doctors, engineers, and also my students. Okay, what is that? Expressing gratitude. Be thankful for all the good things you have, to people who have helped you
और motivate you for the good things what you have done or going to be done. Okay, so make a habit, express your gratitude. Next topic is what? Personal hygiene. क्या है ये? नाउ कोरोना टाइम, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से कैसे अपने आप को ठीक रखेंगे हम लोग? बहुत जगह पे ऐड आ रहा है उसका, हम देखते भी हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं हम लोग। पर्सनल हाइजीन, अगर अपने आप को सही ढंग से मैनेज करना है तो पर्सनल हाइजीन को देखना पड़ेगा। क्या है? इट इज द हैबिट और प्रैक्टिस कीपिंग आवरसेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना। Cleanliness help us to maintain our health and well-being. Being healthy allow you to be regular at school, college, work. हम ठीक रहेंगे तो हमारा घर ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। इनके ऊपर what is this? It is the habit or practice or keeping ourselves clean. It is a habit. अपने आप को साफ रखना, साफ और सुथरा रखना। Personal hygiene is important. Why is it important? It helps us stay healthy, create a good image of ourselves. मान लो तुम आज गंदा कपड़ा पहन के, हाथ पर गंदा हुआ है, अब बाहर घूमने गए हो, कोई तुमसे बात करेगा, इंप्रेस कैसा है आपका? यार अच्छा लड़का नहीं है, गंदा कपड़ा घूम रहा है, गंदा कपड़ा पहन के घूम रहा है, ऐसे बोलते ना हम लोग। तो when you maintain the hygiene properly, it create good image of ourselves. Next क्या? Avoid feeling ashamed in public due to our bad breath, body odor, etc. There are 3 steps to maintain personal hygiene: care, wash, and avoid. Care, wash, and avoid. Look at the picture. Keep your hair free of dandruff. Rub oil or cream to take care of your skin. Brush your teeth regularly, twice a day. Cut your nail every week. These are all what? Care. Next, wash your hand frequently. Take bath every day. Wash your clothes regularly and wash your hair at least every second day or weekly 2 days. And wash your feet often. क्या होता है कि वही सॉक्स पहन के अपना फीट से स्मेल आना शुरू होता है। नेक्स्ट, व्हाट वी अवॉइड? We avoid what? Blow your nose or cough into handkerchief to avoid spreading germ. तो कभी सर्दी हुआ, ठंडा हुआ तो क्या करते हैं हम लोग? हाथ से पूछते हैं, अच्छा है वो? नहीं ना? तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हैंडकरचीफ। उससे क्या होगा? हमारे पास जो जर्म है या वायरस है वो किसी के पास नहीं जाएगा। और You may use the mask, इसलिए बोलते हैं मास्क पहनो। Keep your feet dry and change your socks every day. और 2 दिन में एक बार सॉक्स चेंज करो तो थोड़ा फ्रेश लगेगा तुमको, कोई स्मेल नहीं आएगा अपना पाँव से। क्लियर? Look at the picture. Essential step of hand washing. कैसे हाथ धोना है? It is compulsory for all now. Next topic is my grooming. It's a new topic for you and it's important. What is grooming? There are 2 words. One is dressing, another is grooming. Dressing is the action of putting on clothes. Dressing क्या है? कपड़ा कैसे पहनना है, कौन सा पहनना है, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल ड्रेस।
पार्टी वेयर व नॉर्मल वेयर, क्या पहनना, ये क्या है, ड्रेसिंग। ग्रूमिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। Yes or no? The way you dress and groom can either send the message that you are confident, smart and sincere, or possesses opposite qualities. Dressing and grooming are important because they help us look smart, feel confident about ourselves, make a good impression of ourselves. There are some guidelines for grooming and dressing. Look at the picture. First is clothes, second is hair, third is face. Three factors there. One is clothes, hair and face. ये तीन गाइडलाइन जो मैं यहाँ कलेक्ट किया हूँ, एक तो यहाँ पे दिया हूँ। नंबर 1 आ रहा है clothes. What is that? Clothes should be clean, neat and iron. Number 2, shoes should be clean and polished. Change socks every day और 2 दिन में एक बार, and always wear clean socks if possible. Keep your accessories like belt, jewelry, etc. simple. In certain jobs, display of bodily tattoo and tattoos is not accepted. कुछ जॉब में जाते हैं हम लोग, टैटू अलाउ नहीं करते हम लोग, तो better avoid tattoos in bodies. Next what? Hair. Hair should be washed regularly to keep clean. Avoid what? Dandruffs. Simple hairstyle and well-combed hair gives a smart look. Be simple, be smart. ये मेरा खुद का thought है. Be simple, be smart. Then look toward your face. अच्छा बताओ, अपना चेहरा तुम कितने बार देखते हो मिरर में? आज एक काम करना, स्कूल जाने से पहले मिरर के सामने 2 मिनट खड़ा होना, अपने आप को थोड़ा देखना ठीक ठाक से, फिर स्कूल आने के बाद रात को सोने से पहले देखना कितना डिफरेंस आ रहा है तीनों में। ओके, बाकी तुम जानो। तो फेस लुक क्लीन, अगर शेविंग हो तो अच्छा है। Teeth should be kept clean without any stains. दांत भी साफ होना चाहिए। Brush the teeth twice a day to maintain dental hygiene. And avoid eating what? खाते रहता है, उससे क्या होता है, दांत खराब होता है। पान और chewing metals, tobacco, avoid it, all the things, bad things are there. Okay? So all these things about self management. अगर अच्छा लगा गिव ए कमेंट, अच्छा नहीं लगा फिर भी गिव ए कमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक ऑन ग्रीन स्किल। सो हैव ए नाइस डे, यूटिलाइज योर लॉकडाउन डेज, अच्छे से यूटिलाइज करो उसको, मन लगा के पढ़ाओ, ठीक है, नया नया कुछ सीखो, टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो, टाइम को फुल्ली मैनेज करो, ठीक। थैंक यू वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे। Thank you, my dear students, for watching my videos. Please subscribe my channel and share your valuable feedback. Thank you once again.